اس کے باپ نے ساری عمر سبزی کی ریڑھی لگائی ہے، اس کا شوہر بھی ریڑھی والا ہوگا۔ میری کزن نے دعوت میں سب کے سامنے کہا تو سب مجھ پہ ہنسنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ہم غریب تھے اس لیے کوئی ہماری عزت نہیں کرتا تھا۔ میں وہاں سے باہر بھاگنے لگی، جب اندر آتے ہی کسی لڑکے سے ٹکرائی پر اسے دیکھا نہیں۔ کچھ دن بعد واقعی میرے لیے ایک ریڑھی والے کا رشتہ آیا اور ابا نے میری شادی کر دی۔ میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کے اس کی غربت میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ جب وہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھے مجھے اپنے ساتھ لے گیا، ہوش اڑنے لگے جب وہ کان کے قریب جھکتا بولا، میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئی اور بچپن سے ہی جان گئی کہ غربت انسان سے اس کی عزت چھین لیتی ہے۔ ہمارے گھر کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا، سردیوں میں ہوا کھڑکیوں سے اندر آتی تھی اور گرمیوں میں پنکھا اکثر بجلی جانے کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے ابا سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے اور پسینے میں شرابور دن رات محنت کرتے تاکہ ہم 4 بہن بھائی اور بیمار دادی کی کفالت کر سکیں۔ وہ صبح سویرے ہی سبزی منڈی چلے جاتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوتے، ہاتھوں پر چھالے اور چہرے پر تھکن کے باوجود وہ مسکرا کے ہمیں دیکھتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، ابا آپ تھک نہیں جاتے؟ وہ ہنس کے بولے، بیٹی تھکن تب ہوتی ہے جب پیٹ خالی رہ جائے۔ میں خوش ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاتے ہو۔ گھر کا ہر کونا غربت کی گواہی دیتا تھا۔ دادی کا بستر پرانا اور گھسا ہوا تھا، برتن ٹوٹے پھوٹے تھے اور اکثر ہمارے جوتے بھی مرمت کے بعد دوبارہ استعمال کیے جاتے۔ پھر بھی میرے والد نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہ قرض لے کے یا ادھار پہ سبزی خرید کے بھی ہماری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ محلے والے اکثر ہمارا مذاق اڑاتے۔ جب میں اسکول جاتی تو بچے مجھے چھیڑتے، یہ دیکھو سبزی والے کی بیٹی آ گئی۔ ان کی ہنسی میرے دل میں تیر کی طرح لگتی، مگر میں چپ چاپ چلتی رہتی۔ بڑے لوگ ہمیں طرز بھری نگاہوں سے دیکھتے اور بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی کہتے، ان کے ساتھ نہ کھیلنا، یہ غریب لوگ ہیں۔ میں اکثر سوچتی کہ آخر یہ دنیا کیوں صرف دولت والوں کو ہی عزت دیتی ہے۔ جب بھی کسی امیر کی شادی یا تقریب ہوتی تو پورا محلہ تعریفیں کرتا، اور اگر ہمارا کوئی دکھ ہوتا تو سب پیٹھ پھیر دیتے۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھا، امی لوگ ہمیں نیچا کیوں سمجھتے ہیں؟ امی نے آہستہ سے کہا، بیٹی دنیا کا دستور ہی یہی ہے، امیر کو عزت ملتی ہے اور غریب کو صبر کی تلقین۔ میں نے کہا، تو کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ امی نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، محنت کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میری ماں ہر بار ہمیں صبر کی تلقین کرتی، مگر میں اپنے دل کے اندر ایک آگ محسوس کرتی، وہ آگ جو مجھے بتاتی تھی کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ ایسا جو ہماری پہچان بدل دے۔ ایک دن اسکول میں استاد نے پوچھا، بچوں بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ سب نے خواب سنائے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، میں پڑھ لکھ کے اپنے گھر کی غربت ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کلاس میں سب ہنس پڑے، لیکن استاد نے مجھے داد دی اور کہا، یہ خواب سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ اسکالرشپ کے ذریعے میں کالج تک پہنچی، یہ میرا سب سے بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ابا فیس دے سکے۔ جب داخلے کا خط آیا تو امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا نے کہا، میری بیٹی کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے اپنی ہر کتاب کو ایسے پڑھا جیسے وہ میرے نصیب کا دروازہ ہو۔ اکثر میں لائبریری کے کونے میں بیٹھ کے پرانی کتابوں سے نوٹس بناتی، کیونکہ نئی کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں تھی۔ دوستوں نے کئی بار کہا، یہ سب پڑھ کے کیا کرو گی؟ میں نے جواب دیا، ایک دن یہی محنت ہمارے نصیب کو بدل دے گی۔ کالج کی زندگی میرے لیے روشنی کی ایک کرن تھی، مگر یہ کرن بھی اندھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر صبح جب میں گھر سے نکلتی تو محلے کی عورتیں دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھ کے سرگوشیاں کرتی۔ کوئی کہتا، یہ سبزی والے کی بیٹی کالج جا رہی ہے، دوسری جواب دیتی، ہاں دیکھنا کل کو یہی خاندان والوں کے منہ پہ تانے بنے گی۔ میں نظریں جھکا کے چل دیتی، لیکن دل میں طوفان چھپا ہوتا۔ وہاں امیر گھرانوں کی لڑکیاں اپنی شان و شوکت دکھاتی اور میں پرانے کپڑوں میں خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ وہ میک اپ اور زیورات میں جگمگاتی اور میں لائبریری کی پرانی کتابوں میں گم رہتی۔ اکثر میرے بارے میں سرگوشیاں ہوتی کہ یہ سبزی والے کی بیٹی ہے، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میں دل پہ پتھر رکھ کے خاموشی سے کتاب کھول لیتی۔ ایک دن 2 لڑکیاں میرے قریب بیٹھیں۔ ایک نے کہا، سنیا تم جانتی ہو اس کے ابا روز منڈی میں سبزی ڈھوتے ہیں۔ دوسری نے کہا لگایا، پھر بھی یہ یہاں بیٹھ کے بڑے خواب دیکھ رہی ہے۔ میں نے کتاب سے نظر اٹھائے بغیر کہا، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ وہ چونکی اور پھر تنزیہ ہنسی ہنسنے لگی۔ مجھے لگا جیسے یہ ہنسی میرے دل پہ کوڑے برسا رہی ہو، مگر میں نے ضبط کیا۔ کلاس میں بھی اکثر یہی ہوتا۔ ایک دن استاد نے مشکل سوال پوچھا، پوری کلاس خاموش رہی۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اور اعتماد سے جواب دیا۔ سب نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مگر میرا دل ابا کے لیے خوشی سے بھر گیا۔ استاد نے کہا، شاباش، یہی ہے اصل محنت۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے رہے۔ پیچھے بیٹھے کچھ لڑکوں نے سرگوشی کی، یہ غریب لڑکی سب سے آگے نکل جائے گی، سوچو۔ ایک نے کہا، نہیں، آخرکار اپنی جگہ پہ ہی رہے گی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، تم دیکھنا، میں وہ جگہ بناؤں گی جہاں تمہیں نظر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا۔ کلاس کے بعد میں لائبریری گئی۔ وہاں ایک سرکاری ملازم اپنی بیٹے کے لیے نوٹس لینے آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیٹی تم اتنی محنت سے کیوں پڑھ رہی ہو؟ میں نے کہا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے والد کو مزید ریڑھی نہ دھکیلنی پڑے۔ وہ خاموش ہو گیا اور بولا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ یہ دعائیں میرے لیے نئی توانائی بن گئی۔ گھر واپس آ کے امی کو اپنی کامیابی سنائی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔
انہوں نے کہا بیٹی یہ آنسو خوشی کے ہیں، تم نے ہمارے دکھوں کو کم کرنے کی راہ تلاش کی ہے۔ لیکن ابا ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئے اور کہا بیٹی پڑھائی کرو مگر عزت کے ساتھ، خاندان والوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ دینا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو کاٹ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا ابا کیا خواب دیکھنا بھی برا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولے خواب وہی دیکھو جو حقیقت بن سکے۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن صبا جو میری سب سے قریبی دوست تھی میرے پاس آئی۔ وہ ہنس کے بولی تم جانتی ہو پوری کلاس تمہیں پسند کرنے لگی ہے، سب کو لگتا ہے تم نمبر 1 آؤ گی۔ میں نے کہا نمبر 1 آنا مشکل نہیں، اصل مشکل یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو قائل کروں کہ یہ سب وقت کا ضیاع نہیں۔ صبا نے میرا ہاتھ تھام کے کہا تمہارے خواب سچے ہیں، ایک دن تم سب بدل دو گی۔ کالج میں تقریری مقابلہ ہوا، سب لڑکیاں اپنے اپنے موضوع پہ بولی۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا غربت کوئی عیب نہیں، اصل عیب ہار مان لینا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر سامعین پہ گہرا اثر ہوا۔ آخر میں مجھے تالیاں ملی اور انعام بھی ملا۔ استاد نے کہا یہ لڑکی سب کے لیے مثال ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا کامیاب دن لگا، مگر جب گھر آئی تو ابا نے صرف اتنا کہا ایسی شہرت سے بچنا، لوگ زبان دراز ہو جاتے ہیں۔ امی نے میرے کمرے میں آ کے کہا بیٹی تمہارے ابا سخت ہیں مگر ان کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، وہ چاہتے ہیں تمہیں وہ زخم نہ سہنے پڑے جو انہوں نے سہے۔ میں نے کہا امی لیکن اگر میں ان کے خوابوں کے ساتھ اپنے خواب بھی پورے کروں تو کیا برا ہوگا؟ امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا وقت خود فیصلہ کرے گا۔ کالج کی لائبریری میں میرا زیادہ وقت گزرتا۔ پرنسپل نے ایک دن مجھے دیکھ کے کہا بیٹی تمہارے پاس وسائل نہیں مگر محنت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے ادب سے کہا سر میں بس چاہتی ہوں کہ میرے والد کو میری وجہ سے فخر ہو۔ وہ بولے وہ دن دور نہیں جب ایسا ہوگا۔ یہ سب سن کے میرا حوصلہ بڑھ گیا لیکن دل کے اندر بار بار وہی خوف سر اٹھاتا کہ ابا میرے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ ایک طرف خواب تھے، دوسری طرف سماج کی زنجیریں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی میری اصل جنگ ہے، خوابوں اور روایتوں کے درمیان جنگ۔ گھر میں مشکلات ختم نہ ہوئیں، کئی دن ایسا ہوتا کہ چولہا ٹھنڈا رہتا اور ہم سب خشک روٹی پانی کے ساتھ کھاتے۔ کبھی کبھی امی ٹھنڈے پانی میں تھوڑی سی چینی گھول کے ہمیں دیتی اور کہتی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ ہم سب بہن بھائی خاموش ہو کے وہی پینے لگتے۔ کبھی ابا گھر آ کے خالی جیب دکھاتے اور کہتے آج کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کل پھر کوشش کروں گا۔ ہم ان کی بات پہ خاموش رہتے لیکن اندر سے سب ٹوٹ جاتے۔ دادی کی بیماری نے بھی ہمیں مزید قرضوں میں ڈال دیا۔ وہ بستر پہ لیٹی رہتی اور دواؤں کی ضرورت بڑھتی جاتی۔ ایک دن امی نے کہا اگر یہ دوا نہ لیں تو حال مزید خراب ہو جائے گا۔ ابا نے سر پکڑ لیا اور بولا پیسے کہاں سے لاؤں، لوگ اب مزید قرض بھی دینے کو تیار نہیں۔ میں رات کو پڑھائی کرتی اور دادی کے پاس بیٹھ کے ان کے پاؤں دباتی۔ وہ ہر وقت دعا دیتی کہ اللہ میری زندگی آسان کرے۔ کبھی کبھی وہ کہتی بیٹی تو میری آنکھوں کا نور ہے، دعا ہے کہ ایک دن تیرے ابا کا بوجھ ہلکا ہو۔ میں ان کے لفظوں میں سکون تلاشتی لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ ایک رات جب میں کتاب کھولے بیٹھی تھی تو دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یاد رکھنا بیٹی غربت کبھی عزت نہیں چھین سکتی اگر نیت اور کردار مضبوط ہو۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی لیکن پھر ایک دن وہ ہمیں چھوڑ گئیں۔ صبح کا وقت تھا، امی نے انہیں آواز دی مگر وہ جواب نہ دے سکیں۔ ہم سب نے قریب جا کے دیکھا تو وہ پرسکون نیند میں جا چکی تھی۔ گھر ماتم کدا بن گیا۔ چھوٹا بھائی زور زور سے رونے لگا اور بولا دادی کہاں چلی گئیں؟ امی نے اسے گلے لگا کے کہا وہ اللہ کے پاس گئی ہیں۔ ابا کونے میں بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ سب کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے۔ کل کے دن پورا خاندان آیا مگر کسی نے ہمارے غم کو نہ سمجھا۔ سب کے چہروں پہ صرف کھانے کی لالچ تھی۔ عورتیں کچن میں جھانک جھانک کے پوچھتی کھانے کا انتظام ہوا یا نہیں۔ مرد کمرے میں بیٹھ کے بس گپ شپ میں لگے رہے، کسی نے دادی کا ذکر نہیں کیا۔ امی بار بار آنکھوں کے آنسو پونچھتی اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دکھ کو کسی نے اپنی توجہ کے بھی قابل نہیں سمجھا۔ ابا نے بڑی مشکل سے بریانی کا انتظام کیا۔ وہ محلے کے ایک واقف کار کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی تھوڑے پیسے دے دو بعد میں لوٹا دوں گا، آج کل کا انتظام کرنا ہے۔ وہ بادل نخواستہ مان گیا۔ جب دیگیں آئیں تو میں نے سوچا شاید لوگ تعریف کریں گے مگر کھانے کے بعد بھی اعتراضات شروع ہو گئے۔ یہ گوشت ٹھیک نہیں پکا، چاول کچے ہیں۔ ایک عورت نے کہا اتنے لوگوں کو بلایا اور کھانے کی یہ حالت۔ یہ الفاظ سن کے ابا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی ہمت ٹوٹتے دیکھی۔ وہ سب کے سامنے خاموش بیٹھ گئے مگر میں جانتی تھی اندر سے وہ رو رہے ہیں۔ میں آگے بڑھی اور آہستہ سے کہا ابا آپ نے اپنی پوری کوشش کی، لوگوں کو راضی کرنا کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بس ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے بیٹی غربت انسان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی۔ ان کی یہ بات سن کے میرا دل کام گیا۔ اسی روز ایک کزن میرے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی تمہارے ابا کو اتنا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا سا سادہ کھانا دے دیتے، یوں سب کی باتوں کا نشانہ نہ بنتے۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کھانا نہیں کرتے، یہ ان کی ذمہ داری اور عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ ہنس کے چلی گئی لیکن اس کی ہنسی میرے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔
उस दिन मुझे लगा कि गुर्बत सिर्फ जिंदों को नहीं सताती बल्कि मुर्दों के जाने के बाद भी रुसवाई साथ लाती है। कुल के बाद जब सब रुखसत हुए तो घर की खामोशी और ज्यादा बढ़ गई। अम्मी ने कहा लोग खाना खा के चले गए मगर हमारी दादी का जिक्र तक न किया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा अम्मी, दादी की दुआएं हमारे साथ हैं, हमें उनके अल्फाज को याद रखना है। उसी रात मैंने खुद से वादा किया, मैंने दिल में कसम खाई कि एक दिन उन सबको दिखाऊंगी कि सब्जी वाले की बेटी किसी से कम नहीं। मैं चाहती थी कि वो सब जो हमें नीचा दिखाते हैं एक दिन हमारे सामने सर झुकाएं। मैंने अपनी किताबें खोली और खुद से कहा अब हर दिन मेरे लिए जंग है और इस जंग को जीतना ही होगा। वक्त गुजरता गया और मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने को थी। हर रोज कॉलेज के बाद मैं देर तक लाइब्रेरी में बैठती ताकि मैं अपने ख्वाबों को करीब महसूस कर सकूं। उस्ताद अक्सर कहते तुम्हारे नंबर सबसे अच्छे हैं, मुस्तकबिल तुम्हारा है। उनके अल्फाज मेरे दिल में हिम्मत भर देते। मैं सोचती थी कि जैसे ही डिग्री मिलेगी मैं नौकरी करूंगी और घर की हालत बदल दूंगी। मैंने कई बार अम्मी से कहा अम्मी देखना एक दिन मैं नौकरी करूंगी और अब्बा को सुकून दूंगी। अम्मी मुस्कुरा के कहती हैं अल्लाह करे बेटी, लेकिन पहले अपने अब्बा को राजी करना होगा। मगर अब्बा ने साफ मना कर दिया। एक शाम जब मैंने हौसला करके कहा अब्बा मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, मैं नौकरी करूंगी, घर के खर्चे में हाथ बटाऊंगी, उन्होंने फौरन जवाब दिया बेटी खानदान वाले लड़की की नौकरी करने को बुरा समझेंगे, हम गरीब हैं मगर बेइज्जती नहीं चाहते। मैंने रो के कहा अब्बा आपकी मेहनत देख के मेरा दिल करता है, मुझे कुछ करने दीजिए। मगर उस सख्त लहजे में बोले ये बात फिर ना दोहराना, हमारी इज्जत सबसे बढ़ के है। ये एक ऐसी दीवार थी जिसके आगे मेरा ख्वाब रुक गया। मैंने कई रातें जाग के अपने दिल को समझाया मगर वो खाली सा रहता। सबा ने एक दिन कहा तुम्हारे अब्बा सख्त हैं मगर वक्त आने पे शायद मान जाएंगे, अभी हिम्मत न हारना। मैंने जवाब दिया कभी कभी लगता है कि शायद मेरी तकदीर भी वैसी ही होगी जैसी सब कहते हैं, गुर्बत से जुड़ी हुई। सबा ने मेरा हौसला बढ़ाया मगर अंदर से मैं टूट रही थी। कॉलेज के आखिरी दिनों में मेरी कज़न की शादी का ऐलान हुआ। मोहल्ले भर में बातें होने लगी। अम्मी ने कहा हमें भी जाना होगा। मैं जानती थी कि वहाँ जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। घर में गहमा गहमी शुरू हो गई लेकिन हमारे पास शादी के कपड़ों के लिए पैसे नहीं थे। छोटा भाई बोला आपा आपके लिए नया जोड़ा लाते हैं। अब्बा ने इस पर गुस्सा किया, हमारी औकात क्या है, पुराने कपड़े ही काफ़ी हैं। अम्मी ने पुराने कपड़े निकाले और सिलाई करके मुझे दे दिए। जब उन्होंने कपड़े मेरे सामने रखे तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा अम्मी आप फिक्र न करें, ये कपड़े ही मेरे लिए सबसे कीमती हैं। मगर दिल के अंदर मैं जानती थी कि वहाँ जाके भी फिर मजाक बनेगा। शादी के दिन करीब आए तो मोहल्ले की औरतें चह मगोइयाँ करने लगी। एक ने कहा देखना सब्जी वाले की बेटी फिर पुराने कपड़ों में आएगी। दूसरी ने हंसते हुए कहा हाँ इनके पास है ही क्या। मैंने ये बातें सुनी और नजरें झुका लीं। दिल में अजीब सा खौफ था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। शादी के दिन मैंने वही पुराने कपड़े पहने। आईने में खुद को देखा तो दिल भर आया। मैंने खुद से कहा ये सिर्फ कपड़े हैं, असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती है। अम्मी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटी लोग कुछ भी कहें तुम्हें हिम्मत से जाना होगा। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया जी अम्मी। शादी के दिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैं पहले ही अपने दिल में खौफ लिए हॉल में दाखिल हुई, मगर जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए मेरी कज़न ने ऊंची आवाज़ में कहा इसके बाप ने सारी उम्र सब्जी की रेड़ी लगाई है, इसका शौहर भी रेड़ी वाला होगा। पूरा मजमा कह कहे मारने लगा। रोशनियों के बीच गूंजती ये हंसी मेरे दिल को जख्मी कर गई। मेरा दिल छलनी हो गया, आंखों में आंसू भर आए। मैंने इधर उधर देखा मगर किसी ने मेरा साथ न दिया। हत्ता कि वो रिश्तेदार जो अक्सर हमसे हमदर्दी जताते वो भी उस वक्त खामोश बैठे रहे। सबके हंसने से मेरी रूह कांप उठी। मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा, वो नजरें झुका के बैठी थी। अब्बा के चेहरे पे जल्दी छा गई मगर वो भी कुछ न बोल सके। मुझे यूं लगा जैसे हम सब इस कह कहे के सामने बेबस हैं। मैं वहाँ मजीद न रुकी और भागती हुई बाहर निकल गई। सबा ने मेरा नाम पुकारा मगर मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैंने पलट के भी न देखा। आंखों में इतने आंसू थे कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दरवाजे से निकलते हुए एक लड़के से जोर से टकरा गई। वो चौंक के बोला तुम ठीक तो हो, मगर मैंने नजर उठा के देखने की भी हिम्मत न की और सीधी बाहर निकल गई। मेरे कानों में अब भी वो कह कहे गूंज रहे थे। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या वाकई मेरी तकदीर सिर्फ गुर्बत और रेडी के साथ जुड़ी है। बाहर सर्द हवा चल रही थी। मैंने बेंच पे बैठ के अपना सांस बहाल करने की कोशिश की। सबा मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा तुम क्यों उनकी बातों को दिल पे ले रही हो, ये लोग बस ताने देने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने रोते हुए कहा सबा उनके अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह गूंज रहे हैं, क्या वाकई मेरा नसीब ऐसा ही है। सबा ने मुझे तसल्ली दी, नहीं तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ ये सब तुम्हें रश्क से देखेंगे। इसी दौरान एक रिश्तेदार बाहर आया और तंजिया लहजे में कहा तुम्हें ऐसी बातों की आदत डालनी होगी, हमारी दुनिया में सब हकीकत बोलते हैं। मैंने जब्त करते हुए जवाब न दिया। सबा ने उसे डांटा, शर्म करो, तुम एक लड़की को रुलाते हो और मजाक बनाते हो। वो हंस के बोला ये दुनिया खुद ही मजाक है और चला गया। कुछ देर बाद अम्मी भी बाहर आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगा के कहा बेटी बर्दाश्त करो, हम इनकी बातों से नहीं अपनी मेहनत से पहचाने जाएंगे। मैंने कहा अम्मी लेकिन कब तक,
कब तक हम सबके सामने यूँ जलील होते रहेंगे। वो खामोश रहीं क्योंकि उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। मैं घर जाने का कहने ही वाली थी कि अब्बा भी बाहर आ गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बेटी ये वक्त बर्दाश्त का है, हमारी इज्जत तुम्हारे सब्र से जुड़ी है। मैंने गमगीन आवाज़ में कहा, अब्बा इज्जत कब मिलेगी। वो नज़रें झुका के चुप हो गए। जब हम वापस हॉल में दाखिल हुए तो लोगों की नज़रें अब भी मुझ पर जमी थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ सरगोशियाँ कर रहे थे। मैंने नज़र झुका के सबा के साथ कोने में बैठने की कोशिश की, लेकिन एक और कज़न आके बोली, हम तो बस मजाक कर रहे थे, इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। मैंने जब्त करते हुए कहा, कभी तुम्हें मेरी जगह आना पड़े तो समझ आ जाएगी। वो हंस के आगे बढ़ गई। खाने के वक्त भी बातें ख़त्म ना हुई। एक औरत ने कहा, आजकल की लड़कियां ख्वाब बहुत देखती हैं, लेकिन आखिरकार अपनी हकीकत के मुताबिक ही जीती हैं। दूसरी ने सर हिला के जवाब दिया, हाँ ये भी वही करेगी जो इसका नसीब लिखा है। मैंने उनकी बातें सुनी और दिल में सोचा, क्या वाकई मेरा नसीब पहले ही तय हो चुका है या मैं इसे बदल सकती हूँ। शादी खत्म हुई तो हम सब घर वापस आए। रास्ते भर खामोशी रही। अम्मी ने आयशा से कहा, बेटी सब्र ही असल ताकत है। मैंने जवाब दिया, अम्मी सब्र कब तक। अब्बा ने डांट के कहा, खामोश रहो, ये सवालात हमारी औकात के खिलाफ हैं। मैंने चुप होकर खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। घर आके मैं अपने कमरे में बंद हो गई। दादी की दुआएं याद आईं, उनके अल्फाज गूंजे, बेटी कभी हिम्मत ना हारना। मैंने आंसू पूंछे और खुद से कहा, नहीं मैं नहीं हार मानूंगी, चाहे दुनिया मुझे ताने देती रहे, मैं एक दिन सबको जवाब दूंगी। कुछ दिन बाद वाकई वो बात हकीकत बन गई। मैं अक्सर सोचती थी कि लोगों की जुबान सिर्फ जहर उगलने के लिए बनी है, लेकिन कभी हकीकत नहीं बनेगी। मगर मेरी सोच गलत निकली। एक रेडी वाले का रिश्ता आया। अब्बा ने खामोश लहजे में कहा, बेटी लड़का मेहनती है और हालात के सबब से हमारे लिए बेहतर है। उनकी बात सुन के कमरे में खामोशी छा गई। मैं खामोश बैठी रही। अम्मी की आंखों में भी वही सवाल था, मगर हम सब जानते थे कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। छोटा भाई कह उठा, अब्बा आपा की पढ़ाई का क्या होगा। अब्बा ने उसे डांट के चुप कराया और कहा, लड़कियों के लिए असल डिग्री शादी ही है। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने कुछ न कहा। अम्मी रात को मेरे पास आईं, उनकी आंखें सुर्ख थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी हम मजबूर हैं, ये रिश्ता बुरा नहीं, कम से कम लड़का मेहनती है, इज्जत देता है। मैंने भराई आवाज़ में कहा, अम्मी क्या मेरा ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। उन्होंने मेरा सर थपक के जवाब दिया, बेटी कभी कभी ख्वाब कुर्बान करने पड़ते हैं ताकि ख़ानदान का बोझ हल्का हो। मैंने आहिस्तगी से हाँ कर दी। निकाह हुआ और मैं रुखसत हो गई। तकरीब बहुत सादा थी। मोहल्ले की चंद औरतें आईं। मौलवी साहब ने इजाबो कबूल करवाया। मेरे दिल में अजीब सा खला था, लेकिन मैंने खुद को अल्लाह की रज़ा के सुपुर्द कर दिया। जब मैं अपने शौहर के साथ उसके घर पहुंची तो हैरान रह गई। शौहर का घर छोटा था मगर साफ सुथरा। कमरे की दीवारों पर चूना लगा था। फर्श पर पुराना मगर धुला हुआ कालीन बिछा था। बावर्ची खाने में चंद बर्तन तरतीब से रखे थे। मुझे लगा जैसे वो गुर्बत के बावजूद सफाई और तरतीब को बहुत अहमियत देता है। वो कम कम बोलता, लेकिन उसके लहजे में अजीब सी मोहब्बत थी। पहली रात उसने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें ताने मिले होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि तुमने कोई गलत फैसला किया। मैंने खामोशी से नज़रें झुका ली, फिर हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल किया। वो मुस्कुरा दिया और बोला, फिर ये घर भी अल्लाह की रज़ा से जन्नत बन जाएगा। अगली सुबह बहुत जल्दी उठा। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो। वो बोला, रेडी पे सब्जी लेने, दिन का आगाज़ मेहनत से होता है। मैंने सोचा शायद वो थका हुआ वापस आएगा, मगर शाम को जब आया तो चेहरे पे थकन के बजाय इत्मीनान था। उसे सब्जी के टोकरे नीचे रखे और कहा, आज अल्लाह ने रिस्क में बरकत दी। मैंने पानी का गिलास दिया। उसने कहा, तुम्हारे साथ होने से मेरी हिम्मत बढ़ गई। ये अल्फाज सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू सुकून के थे। पड़ोस की औरतें मिलने आईं। एक ने कहा, बेटी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी शौहर मेहनती है। दूसरी ने तंज किया, हाँ मेहनती तो है, मगर आखिरकार रेडी वाला ही है। मैंने जब्त करते हुए जवाब दिया, रेडी वाला होना ऐब नहीं, हाथ फैलाना ऐब है। वो औरत चुप हो गई। मुझे लगा जैसे पहली बार मैंने अपने दिल की बात किसी के सामने कह दी हो। घर छोटा था मगर उसके साथ हर दिन नया लगता। कभी वो मेरे लिए बाजार से पसंदीदा फल ले आता, कभी कहता, आज तुम खाना ना बनाओ, मैं कुछ ले आऊँगा। एक दिन वो मेरे लिए कागज़ और कलम ले आया और बोला, तुम पढ़ने लिखने की आदी हो, अपनी मेहनत और आदत मत छोड़ो। मैंने हैरत से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे लिखना पसंद है। वो मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी आंखें बताती हैं। मैंने दिल से नसीब को कबूल कर लिया और सोचा अल्लाह की रज़ा में सुकून है। मैंने अपनी पढ़ाई से हासिल किए हुए इल्म को ज़ाया न होने देने का फ़ैसला किया। मोहल्ले की बच्चियां शाम को मेरे पास आने लगी। मैं उन्हें पुरानी किताबों से पढ़ाती। शौहर ने एक दिन कहा, ये बहुत अच्छा काम है, इन बच्चों की दुआएं हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। गुर्बत के बावजूद उसका साथ मुझे हिम्मत देता। मेरी शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि मुझे एहसास हुआ मेरा शौहर बाकी मर्दों से मुख्तलिफ है। वह हर वक्त मेरे एहसासात को पहचान लेता। अगर मैं थकी हुई होती तो खुद कह देता, आज तुम ज़्यादा ना करो, मैं पानी गर्म कर लेता हूँ, या कभी कहता, खाना बाद में, पहले आराम करो। मैं सोचती ग्रेडी वाला इतनी बारीकी से मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को कैसे जान लेता है। एक दिन मैंने चूल्हे पे काम करते हुए आयशा से कहा, कितना अच्छा होता अगर आज दाल के साथ सब्जी भी होती।
अगले दिन वो शाम को घर आया तो हाथ में थैला था। ये लो तुम्हारे लिए सब्जी लाया हूँ। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैंने तो सिर्फ यूं ही कहा था, कभी मैंने इशारा भी न किया और वो मेरा दिल खुश करने की कोशिश करता। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने नई चूड़ियां दिखाई और हंस हंस के मुझसे पूछा, तुम्हारे पास तो शायद ये सब ना हो। मैंने कुछ न कहा, लेकिन उस दिन शाम को वो मेरे लिए सादा सी चूड़ियां लाया। कहने लगा, ये शायद सोने की नहीं मगर तुम पे सबसे ज़्यादा जचेंगी। मैंने चूड़ियां पहनी और मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में खुशी देख के मेरा दिल भर आया। मैं हैरान थी कि एक रेडी वाला इतना मेहरबान कैसे हो सकता है। वो दिन भर भी सब्जी बेचने के बाद भी थका नहीं लगता था, बल्कि मुस्कुराता हुआ घर आता। मैंने एक दिन पूछा, क्या तुम्हें थकन नहीं होती? सुबह से शाम तक रेड़ी खींचना, आवाज़ें लगाना, गर्मी और बारिश बर्दाश्त करना, ये सब आसान नहीं। वह मुस्कुराया और बोला कि यही तो बस सारी थकन उतर जाती है। एक दिन मोहल्ले के बच्चे रेड़ी के पास आके खेलने लगे। उन्होंने बगैर पैसे दिए टमाटर उठा लिए। मैंने बाद में पूछा, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, नुकसान हो गया? उसने कहा, कभी कभी नुकसान भी बरकत बन जाता है। शायद उनके पास देने को कुछ नहीं था। उसकी बातें सुन के मेरा दिल मजीद नरम पड़ गया। हमारी शामें अजीब सुकून भरी होती। तो अक्सर रात को छत पे जाता और कहता, आज आसमान देखो कितने तारे हैं। मैं कहती, हाँ लेकिन हमारे नसीब में तो गुर्बत ही है। वह फौरन जवाब देता, नहीं, हमारे नसीब में इज्जत और मोहब्बत है। गुर्बत आती जाती चीज़ है, मोहब्बत हमेशा रहती है। एक दिन मैंने कहा, तुम इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? वो मुस्कुरा के बोला, क्योंकि तुम इस मोहब्बत की हकदार हो। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरी सारी थकन को मिटा गए। गुर्बत के बावजूद मेरे दिल में पहली बार सुकून उतरने लगा। मैंने उससे कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। मैंने सोचा था कि गुर्बत के साथ सिर्फ दुख मिलेगा, मगर तुमने साबित किया कि सुकून मोहब्बत से आता है। एक दिन वो मुझे मोहल्ले के स्कूल ले गया। उसे प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने कहा, हमें किसी की ज़रूरत है जो बच्चों को पढ़ा सके। अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मगर अब्बा ने मना किया था कि नौकरी ना करूं। तो बोला, ये नौकरी नहीं, खिदमत है। तुम्हारे शौक़ को ज़िंदा रखेगी और बच्चों को इल्म देगी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं ये कर सकती हूँ। पढ़ाने के बाद मुझे अजीब सा सुकून मिलने लगा। बच्चे मुझे उस्ताद जी कह के बुलाते और उनकी मुस्कुराहटें मेरे दिल को खुशी देती। शाम को घर आके मैं उसे बताती तो वह गौर से सुनता और कहता, यही असल ज़िंदगी है, दूसरों को कुछ देना। एक दिन बारिश बहुत तेज़ हुई। उसकी रेहड़ी का ज़्यादातर सामान ख़राब हो गया। मैंने परेशानी से कहा, अब क्या होगा? वो मुस्कुराया और बोला, कल फिर नई सब्जी आ जाएगी, फिक्र न करो। नुकसान पैसे का होता है, हिम्मत का नहीं। मैंने सोचा कि ये शख्स कितना मजबूत है। इसी दौरान एक कज़न आई और तंजिया कहने लगी, कैसी लग रही है रेडी वाले की ज़िंदगी? पछता तो नहीं रही? मैंने पूरे यकीन से कहा, नहीं, मुझे फ़ख्र है कि मेरा शौहर मेहनत की कमाई खिलाता है। वो हैरान हो गई और चुप होकर चली गई। ये सब बातें मेरे दिल में सुकून भर रही थीं। गुर्बत जैसे पस मंज़र में कहीं पीछे हट गई थी। मैंने पहली बार सोचा कि शायद ये ज़िंदगी वो नहीं जिससे मैं डरती थी, बल्कि वो थी जिसमें मैंने मोहब्बत की असल ताकत को पहचाना। एक दिन अचानक मेरे शौहर ने कहा, आज तुम्हें कहीं ले जाना है। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ? मगर वो हंस के खामोश हो गया। मैंने ज़िद की, कुछ तो बताओ, यूं ही डरा रहे हो? वो बोला, सब्र करो, सरप्राइज़ उसी वक्त अच्छा लगता है जब छुपाया जाए। कुछ देर बाद उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी। मैंने घबरा के कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे कान के करीब झुक के बोला, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने खामोशी से उसका हाथ थामा। हम गाड़ी में बैठे और सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में मेरा दिल बार बार डूबता और फिर संभलता। गाड़ी कभी तेज़ चलती तो कभी धीरे हो जाती। मुझे लगता शायद हम शहर से बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा, इतना लंबा रास्ता क्यों है? वो मुस्कुराया, पहुंच के पता चल जाएगा। मैंने कहा, कम से कम ये तो बताओ कि कोई और भी साथ होगा या हम अकेले हैं? उसे जवाब दिया, अकेले। ये वक्त सिर्फ हमारा है। रास्ते में हवा की खुनकी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने महसूस किया कि हम शायद किसी पुराने इलाके से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं बच्चों के खेलने की आवाज़ें और रेड़ी वालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। मैंने डर के कहा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, सिग्नल आया है, घबराओ मत। चंद लम्हे बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। मेरे कानों में एक बड़ी इमारत के गेट के खुलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे हम किसी शानदार मकाम में दाखिल हो रहे हैं। मैंने दबे लहजे में कहा, ये हम कहाँ आ गए? बोला, बस 2 मिनट और, तुम्हारी बेसब्री बढ़ती जा रही है। मैंने हंसते हुए कहा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पट्टी बांधने के बाद दिल की धड़कन कितनी तेज़ हो जाती है। वह हंस के बोला, इसीलिए तो बांधी है ताकि तुम वो लम्हा शिद्दत से महसूस करो। गाड़ी रुकी, वो उतरा और मेरा हाथ पकड़ के बोला, अब आहिस्ता आहिस्ता कदम रखो। मैंने कहा, प्लीज़ अब तो पट्टी खोल दो। वो बोला, अभी नहीं। मैं उसके साथ चलती रही। मुझे महसूस हो रहा था कि फर्श कालीन से ढका हुआ है। इर्द गिर्द हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी, शायद फूलों या ऊद की। कुछ लम्हों बाद वो रुका और बोला, अब तैयार हो? मैंने कहा, हाँ अब तो बिल्कुल। जब गाड़ी रुकी तो उसने आहिस्तगी से पट्टी खोली। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं एक शानदार महल नुमा घर के सामने खड़ी थी। बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और बागीचे देख के मेरे कदम रुक गए। फिजा में खास खुशबू बसी हुई थी और लान के बीचों बीच फवारे की छींटें हवा को मजीद खुशगवार बना रही थी।
सामने कुछ लोग बैठे थे जिनके कपड़ों से ही अमीरी झलक रही थी। उनके बैठने का अंदाज, उनके चेहरे का वकार और इर्द गिर्द मौजूद खादमों का एहतराम सब कुछ बता रहा था कि आम लोग नहीं। मैंने शौहर की तरफ देखा मगर कुछ बोल न सकी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ा और बोला कि मेरे वालिदैन हैं। मेरी सांस अटक गई। मैं हैरान खड़ी थी कि आखिर ये सब क्या है। उसकी वालिदा ने उठ के मेरा हाथ थामा और नरमी से कहा, बेटी खुशामदीद, हम तुम्हें कब से देखने के मुंतजर थे। मैं हक्का बक्का खड़ी रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत से बात कर रही हैं। वालिद आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, हमें फ़ख्र है कि हमारे बेटे ने तुम जैसी बहादुर बीवी का इंतखाब किया। मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, मगर मैं तो बस एक आम लड़की हूँ, आप सब तो। मेरी जुबान रुक गई। शौहर ने फ़ौरन मेरा हाथ दबा के कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम हॉल में दाखिल हुए। हॉल की दीवारें कीमती तस्वीरों और फानूसों से सजी थीं। सोफ़े नरम और भारी कढ़ाई वाले थे। एक तरफ डाइनिंग टेबल सजा था जिस पे अनवा और इकसाम के फल और मशरूबात रखे थे। मैंने दिल में सोचा, क्या ये सब हकीकत है। शाम का वक्त था। खादमाएँ चाय और बिस्किट ले आईं। इस दौरान वालिद ने बात शुरू की, बेटी तुम हैरान होगी कि हमारा बेटा रेड़ी क्यों लगाता था। हकीकत यह है कि हमने इसे मजबूर किया ताकि वो ज़िंदगी की हकीकत को समझे। हम नहीं चाहते थे कि ये सिर्फ दौलत देख के बढ़े, बल्कि ये जान सके कि गरीब की ज़िंदगी कैसी होती है। मैंने शौहर की तरफ देखा। वो मुतमईन अंदाज में बोला, इसलिए मैंने तुम्हें सब नहीं बताया। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे गुर्बत में कबूल करती हो या नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत के लिए कबूल किया, मुझे दौलत की परवाह कभी नहीं रही। उसकी वालिदा ने मुस्कुरा के कहा, बेटी यही बात तो हमें चाहिए थी। तुमने दिखाया कि तुम्हारी कीमत दिल के खलूस से है, जेवरात या दौलत से नहीं। इसी दौरान एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। शायद उसका छोटा भाई था। वो बोला, भाभी अब ये सब आपका भी है, आप यहाँ की रानी हैं। मैंने उसकी मासूम बात पे मुस्कुरा दिया, मगर दिल के अंदर अभी भी सवालों का तूफान था। शाम ढल गई और खाने का वक्त हुआ। दस्तरखान पे हर वो खाना था जिसका मैंने शायद सिर्फ नाम सुना था। कोरमा, बिरयानी, कबाब और कई किस्म के मीठे। शौहर ने मेरी तरफ देख के कहा, कल तक हम 2 बर्तनों में खाते थे और आज ये सब है, लेकिन याद रखो सुकून इन्हीं 2 बर्तनों में था। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ असल सुकून मोहब्बत में है, ये सब तो बस आर्जी है। खाने के दौरान वालिद ने कहा, बेटी हम चाहते हैं कि तुम इस दौलत को दूसरों के लिए रहमत बनाओ। हमने गरीबों को करीब से देखा है, हम जानते हैं कि गरीब के दुख क्या होते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, जी मुझे भी यही सिखाया गया है कि असल इज्जत दूसरों का सहारा बनने में है। खाने के बाद वालिदा मुझे कमरा दिखाने ले गई। एक एक कमरा बड़े से बड़ा और सजा हुआ था। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, मगर याद रखना असल दौलत तुम्हारे सब्र और हौसले में है। मैंने उनके कदम छू के दुआ ली। रात को जब हम अपने कमरे में गए तो मैंने शौहर से कहा, ये सब मेरे लिए बहुत है, मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ। वो हंस के बोला, ये ख्वाब नहीं हकीकत है, लेकिन हकीकत सिर्फ ये दौलत नहीं बल्कि वो मोहब्बत है जो तुमने गुर्बत में मुझे दी। मैंने आहिस्ता से कहा कि यही हकीकत है तो मैं अल्लाह का शुक्र समझ के इसे कबूल करती हूँ। मेरे दिल ने पहली बार सुकून की गहरी लहर महसूस की। मैंने सोचा शायद अल्लाह ने मेरी मेहनत और सब्र का सिला दिया है, मगर साथ ही मैं जानती थी कि ये सब अब एक नई आजमाइश भी है जिसे मुझे ईमानदारी और मोहब्बत के साथ निभाना होगा। उसने आगे बढ़ के कहा, मैं दरअसल एक अमीर घराने से हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे समझाने के लिए कहा था कि गरीब की ज़िंदगी कैसी होती है, इसलिए मुझे रेड़ी लगाने पे मजबूर किया गया। उसके अल्फाज कमरे की खामोश फिजा में गूंज रहे थे। मेरी आंखों में हैरत और आंसू दोनों थे। मैंने लरजती आवाज़ में कहा, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्या तुम्हें लगा कि मैं हकीकत जान के बदल जाऊंगी? मेरी तरफ देख के नरम लहजे में बोला, नहीं, मुझे लगा अगर तुमने मुझे गुर्बत में कबूल किया तो ये मोहब्बत सच्ची होगी। दौलत दे के साथ देना कोई बड़ी बात नहीं, मगर गुर्बत में जीना असल इम्तिहान है। वो बोलता गया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए कबूल करो, ना कि दौलत के लिए। अगर मैं शुरू में ही सब बता देता तो शायद तुम्हारे दिल में ये सवाल रहता कि मैंने तुम्हें दौलत देख के चुना या दिल देख के। मेरी सांसें बेतरतीब थी, मगर उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उसी लम्हे उसकी वालिदा करीब आई और बोली, बेटी हमें अपने बेटे के इंतखाब पे फ़ख्र है। हमने इसकी आजमाइश के लिए ये सब किया, मगर असल इम्तिहान तो तुमने पास किया। तुमने गुर्बत में भी अपनी इज्जत और सब्र को कायम रखा। मैंने उनके कदम छू के कहा, यह सब अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ, मैंने तो बस अपने नसीब को कबूल किया था। वालिद भी मुस्कुरा के बोले, यही वो चीज़ है जो हमारे ख़ानदान की असल पहचान है। दौलत आती जाती है मगर किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। उनके अल्फाज मेरे दिल में घर कर गए। मैंने शौहर की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की, बस ये चाहा कि मेरा शौहर मुझे इज्जत दे। तुमने मुझे वो सब दिया जो मेरे ख्वाबों से भी ज़्यादा कीमती है। वो बोला, और तुमने मुझे ये यकीन दिया कि मोहब्बत दौलत से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। इस दौरान खादमाएँ कमरे में आईं और चाय रख गईं। मैंने कप थामते हुए कहा, यह सब कुछ मेरे लिए नया है, मुझे डर है कि मैं इन सब चीज़ों में कहीं खुद को खो ना दूँ। शौहर ने मुस्कुरा के कहा, तुम वही रहोगी जो पहले थी, तुम्हारी सच्चाई ही इस घर की असल ताकत है।
کھانے کے بعد ہم باغ میں بیٹھے، ہوا خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ باغ، یہ روشنی، یہ سب تو خوبصورت ہے، لیکن سکون مجھے تمہارے ساتھ کے 2 کمرے والے گھر میں ملا تھا۔ وہ ہنس کے بولا وہ سکون کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ صرف باہر کا ہے، دل کے اندر جو محبت ہے وہی اصل سکون ہے۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ جو شاید خاندان کا فرد تھا ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا بھابھی آپ یہاں کی مالکن ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا مالکن وہ ہے جو سب کو اپنا سمجھے۔ شوہر نے سر ہلا کے کہا ہمیں بھی یہی چاہیے تھا۔ رات کو کمرے میں واپس آ کے میں نے آہستہ سے کہا مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے وہ سب دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا ہاں لیکن یہ سب ایک ذمہ داری ہے، ہمیں دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا ہے۔ میں نے کہا ہم ضرور کریں گے۔ جس طرح میں نے غربت دیکھی ہے میں جانتی ہوں کہ چھوٹے سے سہارے سے بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کے بولا کل سے ہم غریب بچوں کے لیے ایک تعلیمی فنڈ شروع کریں گے، تم انہیں پڑھاؤ گے اور میں ان کے اخراجات برداشت کروں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہی میرا خواب تھا کہ میں اپنی تعلیم دوسروں کے کام لاؤں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی جو سب سے قیمتی ہے، عزت اور محبت۔ اس دن مجھے یہ سبق ملا کہ غریب یا امیر ہونا انسان کی اصل پہچان نہیں، اصل دولت اخلاص اور سچی محبت ہے۔ جب رات کا سکوت گہرا ہو میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ ہمیں ہمیشہ سچائی اور محبت کے راستے پہ قائم رکھنا، ہمیں دولت کے غرور سے بچا اور ہمیں دوسروں کی امید بننے کی توفیق دے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی، یہ تو ہماری نئی شروعات ہے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ واقعی میری زندگی کا سب سے قیمتی باب آج کھلا ہے۔ اصل دولت دنیا نہیں بلکہ محبت اور خلوص ہے۔ انسان کی پہچان اس کا کردار اور صبر ہے، نہ کہ اس کی غربت یا امیری۔